So in the previous class, we started about game playing in artificial intelligence. Here, let's just revisit what are the key points of game playing problem. First, as you know, for this game playing problem, we draw a game tree. As you can see on your screen, right side, it is a simple game tree for tic-tac-toe game. Okay, and where node each node representing one of the state of the of the game. Okay, and in this game playing, there is a two player are playing this game, max and min. Maximum player try to increase the value of utility. Okay, and min player try to minimize this value of utility. And what is the utility? Utility is the payoff value of payoff function, or you can say the reward. Okay, as in this case tic-tac-toe game, if max player win the game, the utility is +1. If game is drawn, then utility value will be 0, and if the max player lose, then utility will be -1. So you can set this way the utility, and always the utility value is defined for the terminal node. Okay, and each this game is played by one, means first turn taken by the max player, then min, then max, then min. Okay, so each layer, or each level of this game tree is called play as well. Play. Okay, play, sorry. Each this level, this game tree is called play. Okay, so in this way we defined our game problem with the representation of our game problem. Okay, so in this way we have seen an algorithm min max search procedure in the last class. Okay, so now if this algorithm is clear to all of you, you can say clear. Otherwise, we can see once again what in the min max player we have discussed in the last class. Okay, if it is clear, then let's start the next game playing algorithm, which is alpha beta pruning. Okay, there is some limitation of this min max problem, as we have discussed in the last class. Let's see what is the problem in this technique. The first problem in this alpha beta pruning is it what we can say, it visit every possible path of the game. Okay, if it is it good or not, good or not, in the sense the move is in term of betterment, it is better or not, we include in our graph this search tree or the game tree. Okay, let's see alpha beta pruning. So the solution of or the we can remove the limitation or using alpha beta pruning. Okay, so the alpha beta pruning is not an actual new algorithm, rather than is an optimization technique for min max algorithm, or you can say it's an advanced version of min max algorithm. Okay, it reduces the computation time by huge factor. How this reducing this computation factor, this allow us to reach much faster and even go deeper level in game tree. It cut off branches in the game tree which need not to be searched, because these already exist a better move available. So in this alpha beta pruning, try to cut off the unwanted or the
what you can say, the node which the node or the branch which is not very promising. Okay, if you find a already we have a we have find a branch which has the good solution or the good path, so why the need to search the another path which has the least less utility value. Okay, what I want to say here, suppose this is your game tree and you find this path is better to reach to your optimal values or the goal state, or you can say the better utility values. Okay, so there's no need to explore the other path which has the utility value is most compared to what the path we have already find. Okay, so means it's prune the unwanted branches from your game tree. Okay, in this alpha beta pruning, we cut off or prune the branch or the sub part of this game tree which is not looking very promising or it is not better than what the path we already found. Okay, so it is called alpha beta pruning because it is two extra parameter in min max function, the namely alpha and beta. Let's define what is the alpha and beta. Alpha is the best value for maximizer. Okay, as you know, the maximizer will opt the maximum value of utility. Okay, so the alpha is the best value for value that the maximizer currently can guarantee at that level, and beta is the best value for minimizer. Okay, currently I can guarantee at that level or above. Okay, so alpha beta you can define with the alpha is the value which is we deciding using maximizer, and beta is the value which we defining or using minimizer. Okay, in your game tree. Let's see the example. As you can see on your screen, there is one game tree. Okay, initially the alpha which maximize the utility values, initially just consider its value is in the worst case minus infinity, and beta which minimize your utility values, in worst case the value of this beta is infinity. Okay, so in this initially we are considering or the setting the value of alpha and beta is minus infinity and infinity. Okay, first the maximizer start the game from this node A, and it has two choice, either it's move to B or move to C. Suppose it's move to B, then minimizer turns and minimizer can move from this state B to D or E. Either it can opt or it can choose this path or this path. Just consider it move, move or select the path D. Now at the D, the value of alpha and beta is minus infinity and infinity. Here at the D level, it's the maximizer turn. So maximizer has two choice, 3 or 5. The maximizer has the state D has two choice, 3 and 5, and at this state the turn is maximizer's turn. So maximizer turn will always select. Sorry, at the D it has two choice, but suppose it's just move from this side and it's see the value of this side is 3. The utility value of this terminal node is 3. So it's set value of alpha. Always maximizer set the value of alpha and minimizer set the value of beta.
So it said compare the value of the initial value of alpha is minus infinity, as you can see. So from minus infinity and the current value is 3, apply the max function. As you can see, the maximum value from minus infinity to infinity, which one is greater value or maximum value, which is 3. So it set the value of alpha is 3. Now the current value of alpha is 3, means the next value which is more we can say promising or the good move, when the next value or the terminal has value of more than 3. Okay, if you have a available path, the value of alpha can increase by 3, means the next child, the remaining child should be like that, which increase the value of alpha, because the current value of alpha is 3 and maximizer function will choose the maximum value. If is there any value which can increase the value of alpha, so it explore the next path or the next option which available at state D is this path where the terminal node value or the utility value is 5. So now this maximizer function has two choice. The current is 3 and next choice is 5. And now you can see what is the maximum value. Which one is the maximum value? Which is 5. So it set the value of alpha as 5, means replace 3 by 5. So at this level, the value of alpha, as you can see, it's set as 5. Okay? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज रिप्लाई इन चैट. ओके, देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको डबल से रिपीट कर देता हूं. हम लोगों ने स्टार्ट किया गेम खेलना. हम स्टेट ए पे हैं. स्टेट ए के टू चॉइस है, वो आइदर बी पे जाए या सी पे जाए. ठीक है, अभी हमने इनिशियली वैल्यू सेट की अल्फा की माइनस इन्फिनिटी. अल्फा जो है वो ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू को चूज करता है. हम बॉस्ट केस में कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी. एंड द बीटा की वैल्यू क्या होगी? बीटा क्या करता है? मिनिमम वैल्यू सेट करता है. तो हमने इनिशियली बॉस्ट केस में कंसीडर किया कि इस वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है. हम ए से में स्टार्ट किया. ए पे मैक्स की टर्न है. मैक्स क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू को ऑप्ट करेगा. बट मैक्स के पास अभी टू चॉइस है, कोई भी एक चॉइस को ले सकता है. अभी उसने सपोज कंसीडर किया बी चॉइस को सेलेक्ट किया. नाउ मिनिमम की टर्न है. मिनिमम के पास भी दो चॉइस है, डी पे जाए या ई पे जाए. जस्ट कंसीडर उसने डी को ऑप्ट किया. अब डी के पास जो टर्न है वो मैक्स की है. ठीक है, तो मैक्स फर्स्ट गया लेफ्ट चाइल्ड पे. ठीक है, उसने देखा इसकी वैल्यू जो है वो 3 है, यूटिलिटी वैल्यू 3 है. अभी करंट आपकी जो अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है और जो नेक्स्ट चाल आपको जो मिला है उसमें 3 है. उसमें मैक्सिमम क्या है वो उसको ऑप्ट करेगा, क्योंकि जो ऑलवेज जो मैक्स फंक्शन है या मैक्स प्लेयर है वो मैक्सिमम वैल्यू को ऑप्ट करता है. तो उसने सेट कर दिया अल्फा की वैल्यू को 3. अब उसके पास जो डी जो नोड है जिसमें मैक्सिमम का टर्न है वो क्या करेगा? उसके पास अल्फा की वैल्यू हुई 3. अब उसको एक ऐसी मूव फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू मतलब की वैल्यू 3 से ज्यादा कर सके. ठीक है, क्योंकि 3 तो उसको मिल चुका है. मीन्स इसकी वैल्यू मिनिमम 3 तो है. मीन्स आपको जो अब इससे बेटर वैल्यू क्या हो सकती है जो 3 से ग्रेटर हो. ठीक है, तो आपको ऐसे मूव फाइंड करना है जो इसकी वैल्यू को क्या इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 तो है, उसको पता चल गया है. ठीक है, क्योंकि 3 एटलीस्ट 3 का तो बेनिफिट मिल ही रहा है इस पे. ठीक है, तो उसका राइट हैंड पे मूव किया, मीन नेक्स्ट मूव पॉसिबल है 5 पे. तो उसका 5 एक चॉइस है और करंट में 3 है. तो विच वन इज बेटर मूव? 5. सो वो अल्फा की वैल्यू सेट कर देगा 5 को. ठीक है, और यही वैल्यू जो नेक्स्ट अब क्या नेक्स्ट का टर्न था अपर में क्या है? मिनिमम क्या सेट करेगा? बीटा की वैल्यू. ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या होगी? 5. मीन्स यदि ये मूव सेलेक्ट करता है तो यहाँ पर इसको वैल्यू क्या मिलेगी? 5. मीन्स अब ये बोल रहा है मिनिमम कि मेरे पास मिनिमम
जो वैल्यू वो 5 है, मीन्स अब इसको क्या करना है, इससे कम वैल्यू क्या किसी और चाइल्ड के पास है जो इसकी बीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि ऑलवेज मिनिमम क्या करता है, बीटा की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। क्या इसका ऐसा कोई पाथ है जो बीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर सकता है? ये वाला एक्सप्लोर हो चुका है। नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करेगा, ई को। ई पे गया, ई पे भी अल्फाबेटिक वैल्यू, बीटा की वैल्यू डिफाइंड नहीं में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। देन ये गया अपने लेफ्ट हैंड चाइल्ड पे विच इज 6। ठीक है, यहाँ पर कौन का टर्न है, मैक्स का टर्न है। ई नोड पे मैक्स का टर्न है। मैक्स का टर्न, मैक्स क्या करेगा, अल्फा की वैल्यू सेट कर देगा 6। अल्फा ने वैल्यू कर दी, मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी 6। ठीक है, अब 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 थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी आपका अल्फा की वैल्यू ई पे क्या है, 6 है। मीन्स अब ई पे मैक्सिमम प्लेयर क्या कोशिश कर रहा है कि अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है। मीन्स 6 तो मिनिमम है ही, मीन्स 6 इज द मिनिमम वैल्यू एट दिस लेवल वेयर द नोड ई, और मैक्सिमम की टर्न है, इसने एटलीस्ट 6 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू 6 से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्फा क्या कर रहा है, ऑलवेज मैक्सिमाइजर क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बट लेवल बी पे क्या है, बीटा की वैल्यू 5 है, इसको क्या चाहिए, इससे लेस वैल्यू, मीन्स ये वैल्यू कभी लेस होगी नहीं अब। तो वो जो अदर जो पाथ है वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। अभी देखिए, अभी आपके लेवल ई पर अल्फा की वैल्यू आपने सेट कर दी 6। अब ये जो मैक्सिमाइजर है, मैक्सिमाइजर का काम है वैल्यू को ये मैक्सिमाइज करना। मीन्स ये वैल्यू 6 है, मीन्स 6 से नीचे तो कभी नहीं जाएगी। ठीक है, यदि कोई ऑप्शन नहीं दी या 2 1 3 कुछ भी होगा, मैक्सिमाइजर को कभी चूज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू का 6 से नीचे है। ठीक है, मीन्स ये वैल्यू 6 से नीचे कभी नहीं जाएगी। और आपके बी लेवल पे क्या करता है, वैल्यू को मिनिमाइज करता है, उसको 5 मिल चुका है, मीन्स 5 से कम वैल्यू को फाइंड कर रहा है। बट यहाँ तो 6 है, मीन्स ये वैल्यू कभी इससे कम होगी नहीं। तो वो जो अदर पॉसिबल पाथ है वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, इसकी वैल्यू कितनी भी हो, इस पे आपका जो रिजल्ट पे है वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पाथ है वो उसको प्रून कर देगा विदाउट एक्सप्लोरिंग, विदाउट कंसिडरिंग फॉर मूव। ओके, ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया है? ये पॉइंट समझ में आएगा तो प्लीज राइट इन चैट इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर इवन यू कैन स्पीक, इफ इट इज नॉट क्लियर। सर ये वाला पॉइंट वापस रिपीट कीजिए ना। ओके, ओके, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ तक समझ में आएगा होगा, बी बी पे बीटा की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब ये जो बी पे मिनिमाइजर है जिसने सेट कर दिया है बीटा की वैल्यू 5, मीन्स अब ये क्या कर रहा है, ऐसी वैल्यू फाइंड करेगा जो 5 से कम हो। ठीक है, क्योंकि 5 तो उसको ऑलरेडी मिल चुका है, ये क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है वैल्यू को। मीन्स ये 5 से ज्यादा वैल्यू को तो लेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 उसको मिल चुका है, तो ये मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, अब उसने इसका ऑप्शन क्या था, ई। ई पे टर्न किसकी है, मैक्सिमाइजर की। मैक्सिमाइजर ने फर्स्ट जस्ट एक्सप्लोर किया लेफ्ट हैंड साइड चाइल्ड विच इज द वैल्यू इज 6। तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमाइजर ने सेट कर दी यहाँ पर 6। ठीक है, अब क्या है कि ऑलरेडी इसकी वैल्यू 6 है। ठीक है, अब मीन्स इस लेवल पे क्या हो सकता है, अल्फा की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी। मीन्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ऑलवेज, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी मिल चुकी है। ये ई पे जो मैक्सिमाइजर है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 तो मिल ही चुका है, 6 से नीचे तो जाना ही नहीं उसको, 6 से ज्यादा ही वो देख रहा है। पर इस लेवल पे जो अपर लेवल पे मिनिमाइजर है उसको 5 मिल चुका है, यहाँ 6 है, मीन्स ये वैल्यू कभी इंक्रीज होगी नहीं। और इसको चाहिए सिर्फ डिक्रीज वैल्यू, तो वो इसको चाइल्ड कभी देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 है। ठीक है, मीन्स अल्फा की वैल्यू तो 6 से नीचे जाएगी नहीं, 3 4 तो होगी नहीं जिसको बी देख रहा है। ठीक है, बी का तो 5 ऑलरेडी मिल चुका है ना। तो ये इसका जो नेक्स्ट जो भी पाथ है वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसकी वैल्यू जस्ट कंसिडर कीजिए, 9 ना होके 2 होती, 2 होती। आपने ई पे किसकी टर्न है, मैक्सिमाइजर की, वो 2 को सेलेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अल्फा की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये वैल्यू 6 से ग्रेटर है, जस्ट कंसिडर 9 ही है, इसने अल्फा की वैल्यू 9 सेट कर ली। अभी 16 6 9 इज द ग्रेटर देन 6, सो इट विल सेलेक्ट 9। बट यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है,
और ये मिनिमम वैल्यू को देख रहा है, पर 9 तो इससे ज्यादा है, तो वो भी इस बात पे जाएगा ही नहीं कभी। इस केस में आपकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 5 ही रहने वाली है। ठीक है, मीन्स ये जो पाथ है इसका अफेक्ट इस नोड पे हो ही नहीं रहा है। इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, ये इस लेवल पे अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। मीन्स इसको हम प्रूव कर सकते हैं, मीन्स ये हमारे रिजल्ट और पे इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। अभी समझ में आया सभी, सभी को, लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो हम इस पाथ को प्रूव कर देंगे। ठीक है, यदि मिन मैक्स होता तो इसको ही एक्सप्लोर करता, देन वैल्यू सेट करता, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग में ये किया, ऐसे पाथ को प्रूव कर देंगे जो हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट ही नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, इस केस में हमने देखा इस चाइल्ड को एक्सप्लोर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अब आपका मिनिमम बीटा पे, इस लेवल बी पे आपने बीटा की वैल्यू सेट कर दी 5। ठीक है, अब ये 5 डायरेक्ट जंप होगी नेक्स्ट लेवल पे विच इज ए, और द मैक्सिमम टर्न, नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 5। ठीक है, अब क्या है इस लेवल पे, ये है कि इसकी वैल्यू 5 है। मीन्स अभी क्या कर रहा है, ये मैक्सिमाइजर है, मैक्सिमाइजर करना है। अभी ऐसे ऐसे चाइल्ड को या ऐसे पाथ को एक्सप्लोर करेगा जो क्या 5 की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स इट इज लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ऐसे पाथ को एक्सप्लोर कर रहा है या देख रहा है जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा हो सकती है क्या। अब इसने सी को एक्सप्लोर नहीं किया, अभी सी पे गया, देन सी ने के पास ऑप्शन है एफ जी, कोई भी एक चाइल्ड चलेगा क्योंकि डीएफएस है, इसलिए हम डेप्थ पे जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, सी एफ एंड एफ के पास पाथ है 1। एफ पे कौन है, मैक्सिमाइजर है, ये अल्फा की वैल्यू सेट कर देगा 1। ठीक है, बी सी पे कौन है, मिनिमाइजर है, वैल्यू कर देगा बीटा की सेट, तो ये सेट कर देगा बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पर आपकी अल्फा की वैल्यू है 1, मीन्स अब बीटा क्या चाह रहा है कि वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो। ठीक है, तो एक चाइल्ड को विजिट करेगा 2 को, जिसने सेट कर दी अल्फा की वैल्यू 2। अब ये 2 पास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू इस लेवल पे हो गई 2। अब बीटा की वैल्यू हो गई 2 सी पे। अब सी का क्या काम है, वैल्यू को मिनिमाइज करना। 2 ऑलरेडी मिल चुका है इसको, मीन्स ये ऐसी वैल्यू को एक्सप्लोर फाइंड करेगा जो वैल्यू इसको डिक्रीज करे। ठीक है, बट क्या ये वैल्यू की, बी की वैल्यू डिक्रीज कौन कर सकता है, जी, बट ये इसकी कम सेलेक्ट करेगा। बट ऑलरेडी यहाँ पर ए पे आपको 5 मिल चुका है, मीन्स ये 2 से ज्यादा तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, और ऑलरेडी आपको ए पे अल्फा की वैल्यू 5 मिल चुकी है। ठीक है, मीन्स ये सी जो है इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर तो होगी नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो जो भी अदर अनएक्सप्लोर्ड पाथ है उसको एक्सप्लोर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आपके जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो उस पर इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। तो जो भी अदर पाथ है, जैसे ये अनएक्सप्लोर्ड पाथ है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे गेम ट्री में। इसको हम प्रूव कर सकते हैं और कट ऑफ कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लोर दिस सब ट्री ऑफ द गेम ट्री। इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? इसमें जो की पॉइंट है वही है कि आपका जो मैक्सिमाइजर पे है, सपोज हम मैक्सिमाइजर पे हैं, तो मैक्सिमाइजर क्या करेगा, अल्फा की वैल्यू है, क्या सेट करता है, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ बीटा। ओके, एंड मिनिमाइजर है, मिनिमाइजर पे आपको क्या चाहिए, मिनिमाइजर क्या सेट करता है, बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू अल्फा। आपको ये दो ही केस, सॉरी, दो ही केस चेक करना है ऑलवेज। यदि ये कंडीशन फेल है, ये कंडीशन फेल है, तो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज
उसको कट ऑफ कर देंगे और प्रून कर देंगे, तो सब ट्री को या सब पाथ को फ्रॉम द करंट नोड, द करंट स्टेट. If it is clear, then good. Otherwise, we will see one more example, and I'm sure that example will clear all your doubts. Okay. So these are the steps which we follow to find the unwanted sub tree from the given game tree. Okay, I will share this notes, then you can read all about this and you can find how we exploring the whole game tree. Okay, let's see the example. One example I will write here. Example of alpha beta pruning. At this level where we start the game, we set the value of alpha as minus infinity in worst case, and value of beta in worst case is plus infinity. We start the game, means maximizer start the game. We have two player, max and min. Max is try to maximize the value of utility, and minimizer is minimize the value of utility. Okay, we start from this node and it has two choice. Okay, as you know, in the DFS we choose only one path. Okay, then so suppose consider it move this path. Now the minimizer turn, again it will choose one out of this two path, one path. Now we have reached to this path, this node, and now again it has two choice. It's again choose one path, and now suppose it is the current state in which we have, and now the at this level value of alpha is minus infinity and value of beta is plus infinity, and it is a minimizer, means it will try to minimize the value of utility. Now it's infinity and it just move this terminal node, there is the value is 3, so when it will choose infinity and 3, which one is the minimum value? 3 is minimum, so it said value of beta at equals to 3 at this level or at this state. Okay, this minimizer set the value of beta equals to 3, means अब क्या है कि इसकी वैल्यू मिनिमम 3 तो है, ठीक है. अब इससे अब मीन्स मैक्सिमम 3 तो है, इससे कम वैल्यू है तो ही वो उसको उस पाथ को या उस नोड को सेलेक्ट करेगा. ठीक है, अब बस 3 ऑलरेडी मिल चुकी है, तो जो नेक्स्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू 4 है. ठीक है, तो 3 और 4 में से मिनिमम क्या है? 3 है, तो सेट कर देगा वैल्यू ऑफ बीटा इज 3. मींस इन दिस नोड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा इज 3. मिनिमाइजर सेट द वैल्यू ऑफ बीटा इज 3. नाउ ये वैल्यू पास कर देगा नेक्स्ट लेवल को, सो ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 3. करंट वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3. अब अल्फा या इस मैक्सिमाइजर का क्या काम है? इस अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करना, ऐसे पाथ को फाइंड करना जो अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, ऐसा इसका ऑप्शन है, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, इस साइड को एक्सप्लोर करेगा. ठीक है, नाउ दिस इज द बीटा and it has two choice, 2 and 1. Just set visited this left hand child, set the value of beta is 2, and now the right hand side choice is 1. So out of this two choice, oh 1 minute, even it is not visit this child as well. Okay, 1 minute, even it will not visit this one because the beta value is 2 at this level. मिनिमाइजर सेट द वैल्यू ऑफ बीटा इज 2. ठीक है, मीन्स आपको ऐसा चाइल्ड चाहिए जो बीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर दे. बट यहाँ अल्फा के पास क्या है? अल्फा को 3 मिल चुका है, मीन्स ऐसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा है जो अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करे. ठीक है, बट इसके पास क्या है? बीटा की वैल्यू 2 है, मीन्स अब
कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा तो नहीं होने वाली। ठीक है, अब इस लेवल पे यहाँ पर है अभी, अब बीटा की वैल्यू 2 है, मिनिमाइजर की टर्न है, मिनिमाइजर इस वैल्यू को 2 से ज्यादा तो नहीं होने देगा, क्योंकि वो ऑलवेज क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, बट इस लेवल पे हमको बीटा की अल्फा की वैल्यू 3 मिल चुकी है, मीन्स ये वैल्यू कभी इंक्रीज होने नहीं देगा 2 से, तो हम उस पाथ को भी सेलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं 3 से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लोड ही नहीं करेगा, मीन्स क्या कर देगा, प्रून कर देगा इसको, मीन्स इट इज द अनएक्सप्लोर्ड path, we will not explore this path. Now this alpha value is passed to this next level, beta is set 3। अब आपके पास मिनिमाइजर की टर्न है, मिनिमाइजर को बीटा की वैल्यू 3 मिल चुकी है। अब ये क्या करेगा, ऐसे पाथ को फाइंड करेगा जो इस बीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिसिंग पाथ जो चाहिए वो 3 से मिनिमम चाहिए, लेस देन 3 चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा कोई पाथ है क्या इसके पास, अभी ये पाथ उसका एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो ये अल्फा पे गया, ये क्या करेगा, इस पे जाएगा, देन इस बीटा की वैल्यू सेट कर देगा 7। ठीक है, अब ये 7 अभी उसको ऑलरेडी मिल चुकी है, बीटा है, देन इसको एक्सप्लोर किया, ये क्या हो जाएगी 8, विच इज नॉट ग्रेटर देन द 7, will not set effect on this value of beta, then this 7 is passed to alpha। अब अल्फा क्या करता है, अल्फा क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करता है, मिनिमम 7 मिल गया इसको, अब जो भी वैल्यू होगी 7 से ग्रेटर होगी, बट इस लेवल पे मिनिमम के पास ऑलरेडी 3 आ चुकी है, ये किसको लुकिंग फॉर द वैल्यू विच इज लेस देन 3, बट फ्रॉम दिस साइड इट इज गिविंग द वैल्यू विच इज 7 और ग्रेटर देन 7, सो द रिमेनिंग path or sub path, it will not explode, means again this subtree is pruned। Okay, again I'm pausing for a minute, and please try to understand what I want to say or what I want to explain here। if it is clear, please write in chat, or if it is not clear, please ask, unmute your mic and ask। ठीक है, मीन्स अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पाथ को, ऐसे सब ट्री को कट ऑफ कर रहे हैं जो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। जैसे आप लोगों ने अब तक समझ में आएगा कुछ को, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इस केस में सिंपल से रहेगा, अल्फा की वैल्यू 7 हो गई है, मीन्स अब ये अल्फा क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट इसके जो अपर लेवल पे है, जो मिनिमम की टर्न है, उसने कहा कि बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, ये क्या करेगा, बीटा की वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा है, बट 3 तो मिल चुका है, बट अल्फा क्या प्रॉमिस कर रहा है, मैं आपको 7 से ज्यादा दूंगा, बट ये बोला मुझे ऑलरेडी 3 मिल चुका है, मुझे 3 से कम चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, जो अदर पाथ है वो तो एक्सप्लोड ही नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करेगा 7 से, बट इसको तो 3 मिल चुका है, 3 से कम वैल्यू लुकिंग फॉर द वैल्यू विच इज लेस देन 3। ठीक है, अब ये 3 पास हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सेट 3। अब ये मैक्सिमाइजर है, मैक्सिमाइजर क्या करेगा, ऐसी वैल्यू को देख रहा है जो आपकी अल्फा की वैल्यू को 3 से इंक्रीज कर दे, मीन्स it is the looking for the value which is greater than or equals to 3। ठीक है, अब वो गया इस पाथ पे, बीटा पे, देन ये इस पाथ पे गया, देन इस पाथ पे गया, बीटा पे, अब ये इसका लेफ्ट हैंड चाइल्ड ने बीटा की वैल्यू सेट कर दी 2। ठीक है, ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ये वैल्यू क्या 11 है, विच इज ग्रेटर देन 2, सो ये तो इफेक्ट कर नहीं रहा, बीटा को चेंज नहीं करेगा, ये की वैल्यू अपने पास कर दी इस अल्फा को। अब ये नोड पे
अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, मीन्स क्या करेगा अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करना है। हम्म इस पाथ पे गया, देन अल्फा इसने बीटा की वैल्यू सेट कर दी 1, ये बीटा की वैल्यू 12, ये 12 को लेगा नहीं क्योंकि क्या है मिनिमाइजर है, ये 1 है, ये 2 है। अल्फा को क्या चाहिए ग्रेटर देन वैल्यू, ऑलरेडी 2 है, ये अल्फा की वैल्यू 1 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो इट इज नॉट सेलेक्टिंग, ठीक है। देन दिस 2 वैल्यू is passed as to the next level or the upper level, set the value of beta is 2। अब इस लेवल पे आप देखिए, अभी हम इस लेवल पे हैं, यहाँ बीटा की वैल्यू है 2। अब ये लेवल क्या करेगा, ये मिनिमाइजर की टर्न है इस लेवल पे, ये बोलेगा कि मैं आपकी बीटा की वैल्यू को 2 से कम कर सकता हूँ, यदि एक्सप्लोर करता हूँ जो रिमेनिंग पाथ को तो 2 से कम कर सकता हूँ। बट अल्फा ये जो अपर लेवल पे है ये बोल रहा है 3 तो मुझे मिल ही चुका है, ठीक है। ये वैल्यू क्या करेगा 2 से डिक्रीज ही करेगा, जो तो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव द यूटिलिटी वैल्यू इज 3, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द वैल्यू व्हिच कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये पाथ, ये जो आपका है, ये ऐसी वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है जिसकी वैल्यू अल्फा 3 से ग्रेटर है। तो जो रिमेनिंग पाथ है या रिमेनिंग सब चाइल्ड है या रिमेनिंग सब ट्री है उसको क्या करेगा प्रून, कट ऑफ, इट इज अनेक्स, दिस sub tree need not to be explored because it's not affecting in your result, okay। is it clear, is it clear to all of you? Okay, okay, if it is clear, good, okay। So let's see the in terms of the complexity, min max complexity, time complexity, or the complexity is omega b raised to the power d, where b is the branching factor and d is the depth, or if we talk about the this game, d is the ply, sorry, d is the ply. In max the complexity is b raised to the power d, but alpha beta pruning complexity v raised to the power d by 2, it cut off the half space. In average case it cut off the half search space, okay। So it is increased the time complexity of your algorithm, okay। In best case or in the average case, the time complexity of your alpha beta pruning algorithm is b raised to the power d, which is much better than the time complexity of min max algorithm, okay। But in worst case, time complexity of alpha beta pruning can be the same as min max algorithm, b raised to the power d, means there is a chance we explode each and every possible path in alpha beta pruning as well, okay। Is depending on the uh, which path we have selected first, okay। In this case suppose we move this path then explore, okay। So it is depending on the which uh, path we are exploring or in the which move we are selecting first, okay। So in the average case the time complexity of this alpha beta pruning is b raised to the power d. In min-max algorithm time complexity is b raised to the power d, okay। Okay, so this is all about alpha beta pruning. How this algorithm is work, I will share this document with you, then you can read out, or the algorithm you can find on this document as well, okay। So this is all about alpha beta pruning. Now you can write the attendance.